سون ایکس ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کرت امہ علاوہ یہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب دی فی الحال اجازت خدا حافظ آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون سری نگر میں آج ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل کو جموں و کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے پروٹم اسپیکر کے عہدے کا دلایا حلف۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی کابینہ نے جموں و کشمیر کے لیے ریاست کے درجے کی بحالی کے حوالے سے قرارداد کو اتفاقی رائے سے کیا منظور۔ جموں و کشمیر عدلیہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشر ابستان کا کپواڑہ دورہ، ضلع کورٹ کمپلیکس میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کا لیا جائزہ۔ اور کشمیر میں کل پہلی بار منعقد ہونے والے انٹرنیشنل میراتھن کے لیے سبھی تیاریاں مکمل، 60 کے قریب بیرونی ممالک سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ بھی کر رہے ہیں شرکت۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون سری نگر میں ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل کو جموں و کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے پروٹم اسپیکر کے عہدے کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، کابینہ میں شامل چند وزراء اور UT کے چیف سیکرٹری اتل ڈلو بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے کے بعد مبارک گل نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں گے۔ میں مبارک گل یہ قانون اسمبلی کا ممبر منتخب کیا گیا ہے، خدا کے نام پر حلف اٹھتا ہوں کہ میں ہندوستان کے آئین اور قانون کی روح سے قرار پایا ہے سچا اعتقاد رکھوں گا اور تیری وفاداری برتوں گا، یہ کہ میں ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، یہ کہ اس فرض کو مجھے سونپا جا رہا ہے وہ وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ دریاسنا مبارک گل نے آج لیجسلیٹو اسمبلی کمپلیکس کا دورہ کر کے منتخب کیے گئے نئے ممبروں کو حلف دلانے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسمبلی ہال، میٹنگ ہالوں، وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے چیمبروں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی کابینہ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا کہ جموں و کشمیر کے لیے اپنی اصل حالت میں ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں کابینہ کی میٹنگ جمعرات کو منعقد ہوئی جس میں اتفاقی رائے سے یہ قرارداد پاس کی گئی۔ کابینہ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے لیے ریاست کے درجے کی بحالی کا معاملہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اٹھائیں۔ سرکاری ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اگلے دنوں میں نئی دلی میں اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزراء سے ملاقات کریں گے۔ کابینہ نے سری نگر میں 4 نومبر 2024 کو لیجسلیٹو اسمبلی طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور اس حوالے سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے گزارش کی کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کو طلب کر کے اسے خطاب کریں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا آج شیر کشمیر بھون جموں میں شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سریندر کمار چودھری کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا مقصد جموں خطے کے لوگوں کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ حکومت میں ان کا برابر کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام سے جو حقوق چھینے گئے ہیں انہیں واپس لینے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ حد بندی اور ریزرویشن صرف ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھی لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات جیتنا ایک آسان کام ہے لیکن حقیقی کام اب شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمیں عوام کے مشکلات کو دور کرنا اور عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے کو کم کرنا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ بارہمولہ انجینئر رشید نے آج ٹنگ مرگ کا دورہ کیا۔ اس دوران کئی عوامی وفود نے موصوف کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل اور مشکلات سے انہیں آگاہ کیا۔ ممبر پارلیمنٹ نے ٹنگ مرگ اسپتال کا معائنہ کیا اور وہاں مریضوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعد میں انہوں نے ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ لوگوں کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی کی۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ لوگوں کے مشکلات و مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशिर बिस्तान ने आज कुपवाड़ा जिला का दौरा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स कुपवाड़ा में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाने की मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने वहां एक पौधा भी लगाया। उन्होंने मामलात की तेज तर सुनवाई करने की हिदायत जारी की ताकि अर्जी गुजारों को बरवक्त इंसाफ मिल सके। चीफ जस्टिस के हमरा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाजिया तबस्सुम, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन, एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी और दीगर पुलिस व सिविल अफसरान भी थे। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल, जो कि अनंतनाग जिले के इंतजामी जज भी हैं, ने आज जिला कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, SSP अनंतनाग, वुकला और दीगर अहम शख्सियात ने इनका कोर्ट कम्प्लेक्स में खैर मकदम किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के मेंबरों और इनफरादी सतह पर वुकला ने कई मामलात और मुतालबात की जस्टिस की नोटिस में लाए। इस मौके पर मौसूफ ने उन्हें बताया कि यूटी की सभी अदालतों में दस्तियाब सहूलियात में बेहतरी लाने और मामलात को तेजी के साथ निपटाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम बिल्कुल बदल गया है और इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है कि अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए मामलात को तेजी के साथ निपटाया जाए। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक बार फिर घरेलू सार्फिन पर जोर दिया कि वो PM सूर्य घर स्कीम के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट्स नस्ब करें। वाज़ेह रहे कि नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत ने इस साल के अवाइल में ये मुफ्त बिजली स्कीम मुतारिफ की थी। काबिल जिक्र है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट्स नस्ब करने के लिए 60% तक की सब्सिडी फराहम की जाती है, जबकि यूटी सरकार ऐसे प्लांट नस्ब करने के लिए इजाफी सब्सिडी भी फराहम करती है। कॉर्पोरेशन ने सार्फिन को फिर सलाह दी कि वो अरसा दराज से वाजिबुल अदा बिजली बिलों की बगैर लेट पेमेंट सरचार्ज अदायगी के लिए बिला किसी ताखीर के सरकार की एमनेस्टी स्कीम से इस्तिफादा करें। इस हवाले से बताया गया है कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा सार्फिन इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। DC ऑफिस लेह में इनकम टैक्स महकमे ने एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस जानकारी प्रोग्राम में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अमृतसर लाल सिंह, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इनकम टैक्सेस महकमे के प्रिंसिपल कमिश्नर विक्रम सहाय और ज्वाइंट कमिश्नर राहुल प्रधान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को टैक्सेस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में आयुष फॉर हेल्दी लिविंग मौजू के तहत मुनक्किदा 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। इख्तिताम तकरीब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्र नाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस दौरान सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर जनरल N जहीर अहमद मेहमान ज़ीविकार की हैसियत से मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाकर आयुष तर्ज इलाज की रसाई को आम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत उजागर की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपया में आज रोल ऑफ टीचर्स इन इरेडिकेटिंग ड्रग अब्यूज मौजू के तहत एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिस और जिला सोशल वेलफेयर दफ्तर के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रिरीन ने समाज से इस बिदत के खात्मे और नौजवानों में मजहबी और इखलाकी अक़दार को फरोग देने के लिए असातिज़ा के रोल की अहमियत उजागर की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने इजहारी ख्याल करते हुए कहा कि असातिज़ा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी अहम करने पर अपना भरपूर रोल अदा करें। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज एक मीटिंग के दौरान सिटी ड्रेनेज
सर्कल SMC के कैपिटल एक्सपेंडिचर का जायजा लिया। मीटिंग में सिटी ड्रेनेज सर्कल के इंजीनियरिंग विंग ने भी शिरकत की। इस दौरान कमिश्नर ने जारी प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मियाद के अंदर मुकम्मल करने की अहमियत उजागर की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया ताकि प्रोजेक्टों की मौसल अमर आवरी और दस्तियाब वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिस दौरान सदर वजाहत हुसैन दुरानी ने ईजैक की तरफ से वजीर आला उमर अब्दुल्ला और काबीना में शामिल वुज़रा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अज़म दोहराया कि ईजैक हुकूमत को हर मुमकिन ताउन पेश करेगी ताकि अवामी बहबूद के हवाले से प्रोग्रामों की मौसल अमर आवरी और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल की दाद रसी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब मुलाजमीन को दरपेश मसाइल बिला किसी ताखीर के हल किए जाएंगे। वादी के बुलंद पाया वली हजरत सईद मोहम्मद मंतकी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मुबारक निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में इनके आस्ताने आलिया वाक़या छताबल में कुरान ख्वानी, खतमातुल मौज़मा, दरूद व अज़कार और मौलूद ख्वानी की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उर्स की तकरीबात में शिरकत की। ज़रिए यूनिवर्सिटी शालीमार श्रीनगर में आज इंडियाज इंटरनेशनल मोमेंटो यूनाइटेड नेशंस के एहतिमाम से 3 रोज़ा कनक्लेव का आगाज किया गया। इफ्तिताई तकरीब में अहम शख्सियात नकुल मेहता और जानकी प्राहरिक ने भी थे। वाज़ेह रहे कि ये बैनुल-अक़वामी तंजीम 35 मुल्कों और भारत में 200 से ज्यादा शहरों में सरगर्म है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद नौजवानों की बैनुल-अक़वामी सतह की मुबाहिसों में शिरकत और नौजवान तलबा में सफारती सलाहियतों को फरोग देना है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स कुपवाड़ा में आज एक तकरीब के दौरान मारूफ स्कॉलर रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स गुलाम अहमद कुरैशी की 3 तसानीफ इस्लाम और तसव्वुफ, द ग्लोरियस इस्लाम और मुताले इस्लाम इजरा की गई। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा, HODs डाइट कुपवाड़ा, डिप्टी CEO कुपवाड़ा और कई मारूफ मुहक्किक, मुसन्निफ और माहिर तालीम मौजूद रहे। तकरीब के आखिर पर मुसन्निफ की इनकी अदबी खदमात के लिए इज्जत अफजाई की गई। कश्मीर में पहली बार मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल मैराथन में तकरीबन 2000 एथलीट शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 59 बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एथलीट भी शामिल हैं। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब फारूक ने कहा कि पहली बार है कि मैराथन के लिए 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी से 30 से 35 एथलीट भी इस मैराथन में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैराथन मुनक्किद करने का मकसद आलमी सतह पर यह पैगाम देना है कि कश्मीर में पूरी तरह अमन अमान है। उन्होंने कहा कि इस मैराथन में बैनुल-अक़वामी एथलीटों की शिरकत इस बात का बरमला सबूत है कि कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले मुनक्किद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कश्मीरी खान पान, पेपर माशी, पश्मीना और दीगर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। मड़वा वुडवन में होलनाक आग वारदात में से मुतासरीन को राहत पहुंचाने और इमदाद फराहम करने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ मकामी गैर सरकारी तंजीमें भी पेश हैं। इस हवाले से रजाकार तंजीम कश्मीर यूथ कवरेज फाउंडेशन ने वजीरबाग अनंतनाग में एक मुहिम शुरू की है, जहां आम लोग आग मुतासरीन को राहत कार्य के लिए अपना भरपूर ताउन कर रहे हैं। ओमपुरा बड़गाम में एक निजी तालीमी इदारे के एहतिमाम से आज सालाना क्रॉस कंट्री रन का एहतिमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के जुमरों के तहत 500 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। 4 किलोमीटर मसाफत वाली इस दौड़ में उन लड़कों और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब पर मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन बट मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर जिस्मानी और जहनी सेहत को तंदुरुस्त रखने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां काफी अहमियत की हामिल है। दौड़ में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को तमगों और असनाद से नवाजा गया। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में करम योगी तदरीस के कौमी हफ्ते का आगाज किया। इस हफ्ते के दौरान हर करम योगी अपनी सलाहियत की मुनासिबत से कम 4 घंटे कोई काम सीखने का अज़म करेगा। ये कौमी हफ्ता अफराद, वजारतों, महकमों और तंजीमों के मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों के जरिए अंजाम देकर सीखने के लिए वक्फ होगा। काबिल जिक्र है कि मिशन करम योगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद मुस्तकबिल के सिविल सर्विसेज की तामीर करना है जो हिंदुस्तानी अकदार और आलमी नुक्ते नजर के मुताबिक हो। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स यानी IGOT से मुतलिक इस पूरे हफ्ते के दौरान अहम मुकर्रीन अपने इलाकों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और ज्यादा मुअस्सर शहरी खदमात की फराहमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा वजारतों और महकमों की जानिब से अमले के फ्लैट सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सेमिनार और वर्कशॉपों का इनेकाद किया जाएगा।
اب آخر پر درجہ حرارت پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6